Hello everyone, welcome back to my channel in the journey to learn machine learning. We have already seen different types of machine learning algorithms, that is supervised, unsupervised, semi-supervised and reinforcement learning. In case you have missed my video, do check out the link attached with this particular video. So now the question comes is, which machine learning technique is most suitable for our particular problem, or how do we check out like which particular algorithm is suitable for all? For example, we have supervised machine learning. In supervised machine learning, we have different algorithms such as we have naive Bayes, we have k nearest neighbor, we have support vector machine, bagging, boosting, decision tree, random forest, and number of algorithms. Now, which algorithm will give us best results for our problem? How do we evaluate that? So, to evaluate the machine learning algorithm is a key important step which is very much necessary as implementing a machine learning algorithm. So let's find out how do we find out the most suitable machine learning algorithm for our problem. So there's a tool which is called as confusion matrix. Confusion matrix is basically a tool to evaluate the performance of supervised machine learning algorithm that is basically used for classification, right? So we have already seen for classification we use supervised machine learning algorithm, and all the algorithms such as naive Bayes, support vector machine, decision tree, random forest are the example of supervised machine learning algorithm. So what is confusion matrix? So let's take up a simple example. Let's say we want to find out whether we want to give the loan to a particular customer or not. So how do we find out? The bank will check the income of the particular customer, will check the education qualification, will check the credit score and the marital status and other attributes for that particular person. And based on certain factors, based on certain decisions, it will check whether the person is capable of getting loan or not. So this kind of data is called as label data, where we are classifying whether a person is applicable for applying for a loan or not, right? So the loan example, whether the person is applicable for the getting a loan or not, is classified into two classes, yes or no. It is not necessarily that our problem should be classified only into two classes and that too opposite of each other. We can have different kinds of classifications such as whether the email is spam or not, whether there is a positive review or a negative review for a particular movie, whether the person will travel by bus or by car, and other examples. So how do we find out which machine learning algorithm is suitable, or how do we measure its effectiveness? We have confusion matrix. So confusion matrix will help us to check the performance of our model on the test data. Yes, as we have already learned that the problem is divided into two parts, test data or the trained data. So on training data, we will train our machine learning model, and to evaluate the performance of the machine learning model, we use test data. And confusion matrix is built on the test data of the problem. Now to understand confusion matrix, we have taken a very simple example. हमने किसी भी data set की 100 rows ले ली. These 100 rows are representing test data. Now we need to test the performance of machine learning algorithm on this test data. Now एक table बनाया हमने. Table में कुछ values हैं 45, 15, 10, 30. ये values क्या हैं? What are these numbers? Let's see what are these numbers. We have some label actual, predicted, yes, no. So इनको समझते हैं कि एक table actually में क्या represent कर रही है. So for these 100 rows, आपके पास कुछ आउटपुट वेरिएबल में कुछ वैल्यूज है, yes, no, whether. अब हम लोन का एग्जांपल लेते हैं, तो लोन के एग्जांपल में भी whether the person is able to get the loan or person is not able to get a loan, तो उसके अगेंस्ट वी हैव वैल्यूज. so these are called as actual values जो हमारे पास टेस्ट डेटा में प्रेजेंट है. एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल आपका प्रेडिक्ट करेगा कि कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना है. So this is yes, no label for the actual values we have, and this is the yes and no for the predicted by the machine learning model. अब ये समझते हैं कि 45 और 15 क्या represent कर रहा है, right? Now we have positive label as yes and we have negative label as no, right? Now this 45 is something, ये 45 नंबर क्या represent कर रहा है? ये 45 नंबर वो नंबर है जो मशीन लर्निंग मॉडल ने करेक्टली प्रिडिक्ट किया है कि ये एक्चुअली में यस लेबल था. तो लेट्स से हमारे पास जो 100 का डेटा सेट था उसमें से हमारे पास टोटल 60 लेबल्स थे जो यस के थे और टोटल 40 लेबल्स थे जो नो के थे, राइट? सो इस 60 में से
एक्चुअल 60 वेरिएबल्स वैल्यूज में से 45 वैल्यूज ऐसी हैं जो मशीन लर्निंग ने करेक्टली प्रेडिक्ट करी हैं। तो एक्चुअली में इनका लेबल यस था और मशीन लर्निंग मॉडल ने भी इनको यस प्रेडिक्ट किया है, तो यस एंड यस विल बिकम 45. So this is something which is called as true positive. Now true positive is something जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है yes और वो एक्चुअली में भी yes है. अब अदर वैल्यू समझते हैं कि ये क्या है, राइट? सो दिस वैल्यू इज 10. नाउ 10 क्या है? हमने देखा था कि 60 हमारे पास yes लेबल था और 40 हमारे पास no लेबल था, राइट? नाउ 60 yes में से हमने 45 yes करेक्टली प्रेडिक्ट कर लिए, राइट? नाउ इन 40 में से 10 वैल्यूज ऐसी हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल ने yes प्रेडिक्ट करे हैं. दैट मीन्स ये गलत क्लासिफिकेशन किया है, उन्होंने गलत प्रेडिक्शन किया है. तो एक्चुअली में ये लेबल्स क्या थे? नो. बट मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या किया? yes किया. तो ये हमारे पास रॉन्ग प्रेडिक्शन हुई. So this is something which is called as false positive. और स्टैटिस्टिक्स की टर्म में अगर आप देखोगे तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर. दैट मीन्स मॉडल ने प्रेडिक्ट किया yes बट इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी? no, राइट? दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव और ये रिप्रेजेंट करता है FP से, राइट? सो नेक्स्ट वैल्यू इज 30. 30 मीन्स हमारे पास 40 में से 10 वैल्यूज तो ऐसी हो गई जो मशीन लर्निंग मॉडल ने 10 प्रेडिक्ट किया है, जो कि ट्रू वैल्यूज प्रेडिक्ट करी है, राइट? नाउ 30 वैल्यूज ऐसी हैं जो नो थी, जिनका लेवल नो था एक्चुअली में, और मशीन लर्निंग मॉडल ने भी उनको नो प्रेडिक्ट किया है. मतलब वो जीरो क्लासिफिकेशन थी या नो क्लासिफिकेशन थी और मशीन लर्निंग ने भी उनको करेक्टली प्रेडिक्ट किया है एज अ नो क्लास. तो दिस इज विच इज कॉल्ड एज ट्रू नेगेटिव. नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव क्लास है, बट वो ट्रूली प्रेडिक्ट किया है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने, इसलिए हम उनको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव. So when a model predicts no and the actual value is also no. Now what is this 15? 15 is something which is also called as false negative. That means हमारे पास 60 values थी yes की, 60 में से 45 मशीन लर्निंग ने करेक्ट प्रेडिक्ट करी, बट 15 वैल्यूज ऐसी थी जो yes थी एक्चुअल में और मशीन लर्निंग मॉडल ने गलत क्लासिफाई किया. तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, और स्टैटिस्टिक्स की टर्म में अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं हम टाइप 2 एरर, राइट? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FN से, दैट इज फॉल्स नेगेटिव. मींस जो मशीन लर्निंग मॉडल ने नो प्रेडिक्ट किया पर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो थी वो यस थी. तो इन समरी हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है. ट्रू पॉजिटिव व्हेन बोथ द लेबल्स आर यस. जब एक्चुअल वैल्यू यस है और प्रेडिक्टेड वैल्यू नो है तो फॉल्स नेगेटिव. जब एक्चुअल वैल्यू नो है पर मशीन लर्निंग मॉडल ने करेक्ट प्रेडिक्ट किया है उसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव. और जब एक्चुअल वैल्यू भी नो है और मशीन लर्निंग ने भी नो प्रेडिक्ट किया है उसको हम बोलते हैं ट्रू नेगेटिव, राइट? सो अब इन मैट्रिक्स हम क्या करें? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव हमें पता चल गया, बट अब क्या करें? तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे हमारे पास एक्यूरेसी है, रिकॉल है, प्रिसिशन है, F1 स्कोर है, एरिया अंडर द कर्व है. आपने बहुत सारे टर्म सुने भी हो सकते हैं, राइट? बट एक्चुअली में सिंप्लीफाई वे में हम कैसे इनको यूज करेंगे, लेट्स सी दैट. तो एक्यूरेसी मतलब टोटल नंबर हमने कितने करेक्ट प्रेडिक्ट करे हैं, चाहे वो यस थे चाहे वो नो थे, बट मशीन लर्निंग मॉडल ने वो करेक्ट प्रेडिक्ट करे हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी. तो करेक्ट प्रेडिक्शन क्या था हमारे पास? अगर आप रिकॉल करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? ट्रू पॉजिटिव मींस यस का था और ये नो का था. एक्चुअल में ये यस है, ये नो है. दिस वाज ट्रू पॉजिटिव, दिस वाज ट्रू नेगेटिव. तो ये हमारे पास चीजें करेक्ट प्रेडिक्शन हुआ है और ये हमारे पास करेक्ट प्रेडिक्शन हुआ है. तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव upon total number of elements we have, total number of rows we have. So this will give us the accuracy, right? तो this is a very important matrix और इसको हम सिर्फ diagonal elements को combine को sum करके निकाल सकते हैं. हमारे एग्जाम्पल में 45 थे जो yes थे और yes predict हुए थे और 30 ऐसे थे जो कि हमारे पास नो थे और नो प्रेडिक्ट हुए थे. अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी हमारे पास? 100. तो इसका हमारे पास एक्यूरेसी क्या आई? 0.75, राइट? तो हम बोल सकते हैं अगर हमने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज किया है और इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए उसकी एक्यूरेसी है 75%, राइट? सिमिलरली अदर मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये हमारे पास सेम कंफ्यूजन मैट्रिक्स है. ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, राइट? तो इनके लिए प्रिसिशन मतलब हमारे पास ये एक्चुअल लेबल्स थे और ये हमारे पास प्रेडिक्टेड लेबल्स थे. सो प्रिसिशन जो है वो रो पे कैलकुलेट होता है. मतलब हमारे पास एक्चुअली में कितने पॉजिटिव केसेस थे और उनमें से हमने कितने करेक्टली प्रेडिक्ट करे, राइट? तो उनमें से हमने कितने करेक्टली प्रेडिक्ट करे, ये हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है जो करेक्ट प्रेडिक्ट हुआ है
और टोटल एक्चुअल में कितने पॉजिटिव लेबल्स थे हमारे पास, वो थे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, राइट। तो प्रिसिशन इज गिवन बाय ट्रू पॉजिटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव, मतलब हमारे पास 45 केसेस थे इस केस में, और 15 हमारे पास नेगेटिवली एक्यूरेट नेगेटिवली क्लासिफाई हुए थे। यहाँ पे हमारे पास 10 था, यहाँ पे हमारे पास 30 था, राइट। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास प्रिसिशन क्या होगा, ये हमारे पास एक्चुअल लेबल है और ये हमारे पास प्रिडिक्टेड लेबल है, राइट। ये यस था, ये नो था, ये यस था, ये नो था। तो प्रिसिशन इस केस में क्या हुआ, 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 15, दैट इज 45 अपॉन 60। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रफली हमारे पास जाएगा 9/12, और इसको हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इसकी वैल्यू 3/4 आएगी, दैट इज 75। तो प्रिसिशन क्या हुआ हमारे पास, 75% हुआ, राइट। नाउ रिकॉल क्या है, रिकॉल हमारा कैलकुलेट होता है ऑन द कॉलम, मींस कितने हमारे पास एक्चुअल पॉजिटिवली करेक्टली क्लासिफाई हुए हैं, राइट। मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने कितने करेक्टली प्रेडिक्ट करे हैं, तो हम कॉलम पे भी गेन करते हैं। एक्चुअली में कितने पॉजिटिव थे, वो 60 थे, राइट। पर मशीन लर्निंग ने कितने करेक्टली प्रेडिक्ट करे, चाहे वो गलत ही प्रेडिक्ट किया हो, उसमें हम मतलब मशीन लर्निंग ने कितने प्रेडिक्ट करे थे, गलत प्लस सही मिलाकर 45 उसने करेक्टली प्रेडिक्ट किए थे, और गलत कितने प्रेडिक्ट किए थे, 10, राइट। पर उनमें से एक्चुअली में कितने करेक्ट है वो हम बता रहे हैं ट्रू पॉजिटिव से, राइट। तो पॉजिटिव केसेस जो करेक्टली प्रेडिक्ट हुए हैं अमंग ऑल एक्चुअल पॉजिटिव केसेस, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 45 अपॉन मशीन लर्निंग ने टोटल कितने करेक्ट प्रेडिक्ट करे हैं, यस प्रेडिक्ट किया है, मतलब 45 प्लस 10, दैट इज 45/55। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे नीचे समथिंग 9/11, तो उसका रिकॉल क्या आएगा, 0.99 समथिंग आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 90% इसका रिकॉल है। दैट मीन्स मशीन लर्निंग मॉडल ने जितने टोटल यस प्रेडिक्शन दिया है पॉजिटिव केसेस का, उसमें से एक्चुअली में कितने करेक्ट है वो आप रिकॉल के प्रेजेंट करते हो। तो रिकॉल हमारा हाई होना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारे बताता है कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा है या नहीं है, राइट। अब F1 स्कोर क्या है, अब कई बार होता है हमारे पास प्रिसिशन हमारे पास लो होता है, रिकॉल हमारे पास हाई होता है, राइट, या प्रिसिशन हाई होता है, रिकॉल कम होता है। तो आप कैसे इवैल्यूएट करें कि कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल बेटर है, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्कोर है F1 स्कोर। नाउ F1 स्कोर इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन होता है हमारे पास, राइट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन, राइट। तो हार्मोनिक मीन का ही फॉर्मूला हम लगाते हैं प्रिसिशन और रिकॉल पे, दैट इज प्रिसिशन इनटू रिकॉल अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल इनटू 2। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा F1 स्कोर होगा। तो जितना अच्छा हमारा F1 स्कोर होगा उतना ही अच्छा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होगा। अब इन 4 मैट्रिक्स के अलावा भी हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, जैसे सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है और आरओसी कर्व है। लेट्स सी कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ सेंसिटिविटी जो होती है वो कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ सेम एज रिकॉल है, उसका एक अनदर टर्म है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपको रिकॉल लिखना है, या आपको सेंसिटिविटी दी हो, या आपको बोला जाए ट्रू पॉजिटिव रेट, राइट। सो दिस इज नथिंग बट ऑल द सेम थिंग जो कि आप कैलकुलेट करते हो, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस FN। तो हमारे पास ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स था, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। तो आप जितने एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलम, जितना मशीन लर्निंग ने एक्चुअली में यस क्लासिफाई किया है फॉर द पॉजिटिव क्लास को, उसके ऊपर कैलकुलेट करते हो। तो बेस्ट वैल्यू रिकॉल की क्या होती है, 1, और मोस्ट वर्स्ट वैल्यू क्या होती है, 0। तो रिकॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसिटिविटी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू पॉजिटिव रेट। तो अगर कोई भी टर्म इंटरचेंजेबली यूज किया जाए मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम इसमें। नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिसिटी। नाउ स्पेसिफिसिटी क्या कहती है, कितने नंबर ऑफ करेक्ट नेगेटिव क्लास प्रिडिक्शन करे हमने, ठीक है। अभी तक हमने जितनी बातें करी है प्रिसिशन रिकॉल की, वो हमने एक्चुअल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पे बात करी है, और कितने करेक्ट प्रिडिक्ट किया मशीन लर्निंग मॉडल ने। अगर हम नेगेटिव केसेस की बात करें और उसमें से कितने करेक्ट प्रिडिक्शन हुए हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, राइट। तो लेट्स से हमारे पास कितने नेगेटिव करेक्ट प्रिडिक्शन हुआ था, 30, राइट। अगर हम मैट्रिक्स याद है हमें, 45 था, यहाँ पर 15 था, यहाँ पे हमारे पास 10 था, यहाँ पे हमारे पास 30 था। तो ट्रू पॉजिटिव था 45, फॉल्स पॉजिटिव था 15, फॉल्स नेगेटिव था 10 और ट्रू नेगेटिव था 30। तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव प्रेडिक्शंस कितने थे हमारे पास, 40, राइट। ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये हमारे पास है 40, राइट। और मशीन लर्निंग मॉडल ने कितने
करेक्ट नेगेटिव प्रिडिक्शंस करें, चाहे वो करेक्ट थे या नहीं थे, पर मशीन लर्निंग मॉडल ने कितने हमारे पास क्लासिफाई किए थे एज अ नेगेटिव क्लास, दैट वाज फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, राइट। तो ये हमारे पास केसेस थे जो एक्चुअल में यस थे पर मशीन लर्निंग मॉडल ने नेगेटिवली क्लासिफाई किए थे, और ये हमारे पास केसेस हैं जो एक्चुअली में भी नो थे और मशीन लर्निंग मॉडल ने भी करेक्टली क्लासिफाई किया एज नो, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर हमें इस कॉलम के अगर हमें मेट्रिक निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी। तो the specificity is nothing but true negative number of correct negative predictions divided by the total number of negative prediction, that is true negative plus false negative। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में we have a value 30 upon true negative हमारे पास 30 है, 30 upon 30 plus 40 plus 15 that is 30 by 45। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 6/9 और 2/3 आएगा, सो समथिंग अराउंड 66% आपके पास स्पेसिफिसिटी आएगी। दिस स्पेसिफिसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू नेगेटिव रेट, राइट। तो मींस कितने नेगेटिव करेक्ट प्रेडिक्शंस किए हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू नेगेटिव रेट और स्पेसिफिसिटी। Now to calculate the opposite of true negative rate, we have false positive rate. Now false positive rate is nothing but it is 1 minus specificity, right? So why I'm talking about these terms, because these terms are used in calculating the ROC curve। ROC curve क्या है? ROC curve हमें एक curve देता है जिसके अगर हम अंडर हम ये सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ROC curve का, इसके अंडर का अगर हम एरिया निकालते हैं, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, उसके अंडर का एरिया होता है एरिया अंडर द कर्व। जितना बेटर हमारा एरिया होगा, द मोर द एरिया, मतलब एरिया जितना अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, उतना ही हमारे पास बेस्ट परफॉर्मेंस मॉडल होगा मशीन लर्निंग का, राइट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मैट्रिक्स चाहिए, स्पेसिफिसिटी 1 माइनस स्पेसिफिसिटी चाहिए, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव रेट, और सेंसिटिविटी जाके यार हमारा रिकॉल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है। तो अगर हम रिकॉल को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी दैट इज फॉल्स पॉजिटिव रेट को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट को हम प्लॉट करके ये हमारे पास बन जाएगा आरओसी कर्व। उस आरओसी कर्व के लिए हम मेट्रिक बनाएंगे और इसके लिए हम एरिया फाइंड करेंगे। नाउ इस आरओसी कर्व का एरिया क्या है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी और हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो हमारे पास एक ट्राइंगल मिल गया। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हाफ इंटू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ एरिया अंडर कर्व, राइट, or which is AUC. So more the value towards 1, we have a better performance model for the machine learning, right? So this is अगर हमने एग्जाम्पल शो किया या हमने रैंडम क्लासिफायर लिया कोई भी, हमारे पास बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, लेट्स से हमारे पास नेव बायस का आया, ये हमारे पास डिसीजन ट्री का आया, ये हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन का आया, और ये हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट का आया। सो वी कैन सी दैट ये जो कर्व आया पर्पल लाइन वाला, ये बिल्कुल एक्यूरेट कर्व आया है, तो इसका एरिया क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल फॉर आवर प्रॉब्लम। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स। अभी हम हमारे पास कुछ और मैट्रिक्स हैं विच वी हैव मैक्रो एवरेज प्रिसिशन एंड माइक्रो एवरेज प्रिसिशन, माइक्रो एवरेज एंड माइक्रो एवरेज recall। So please stay tuned to my channel for these kind of metrics. We will be covering it in the next video. So in this video में हमने क्या क्या points remember किए, we have seen कि confusion matrix is a very important tool to evaluate the performance of classification algorithms, right? Classification need not need to be opposite, हमारे पास yes या no में classes हो, not necessary, we can have other classification also. So one is positive label and the other class is negatively labeled, okay? And we have seen that recall and precision depends on the context, हम किस context के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम actual cases की बात कर रहे हैं तो we are talking about precision, और अगर हम predicted cases की बात कर रहे हैं जो कि machine learning ने predict किया है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो we are talking about recall, right? So as compared to precision and recall, we use accuracy, AUC, and F1 score as a most comprehensive evaluation matrix. So for any kind of question related to any of the metrics, please do comment me in the comment section, and please subscribe my channel for more such informative videos, and please hit the like button if you like my video, and if you have any comment, any suggestion for me, do write me in the comment section. Thank you for being with me.